अपलोड किया था मैंने। नहीं सर, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाला। अच्छा। चलो आज एक तुम्हारे एक मॉक इंटरव्यू लेते हैं। सर आज सर ना एक खाली ये पोर्शन पढ़ा लो ना, मैं थोड़ा सा बिजी था, पोर्शन और शेड्यूल मास्टर डेटा वाला। नहीं, अभी तक तुमने क्या क्या तैयारी किया, क्या क्या किया उसके बारे में बताओ। अभी तक क्या क्या पढ़े तुम? सर मैंने वो ये टेक्निकल मास्टर डेटा का तो पढ़ लिया था, मतलब क्या क्या होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, प्रीमाइज, डिवाइस लोकेशन, मटेरियल मास्टर, ये सारा पढ़ लिया था। वो SPRO के साइड से कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। चलो। उसके बाद रजिस्टर कैटेगरी सर क्रिएट किया था। तो चलो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, about your ISU background. What do you know about the ISU? What is your roles and responsibility in the ISU project? Tell me, Ankit. What do you know in ISU? So SAP ISU stand for Industry Specific Utilities. This is a ERP mod software in which bulk customer data is handled. We use SAP. Currently, I'm a functional consultant where I look after day-to-day configuration related to device management. In device management, I look after the creation of connection of technical master data, which includes connection object, creation of connection object, premise, device location, and resolve day-to-day issues. Like for example, if new area is created for that new connection object, I have to create for that area. All that data is taken from the client. And I also configure if we have received any new meter, then I have to configure the register group for that new meter. Also, I involve in the task of full installation, and I work as a support consultant. I didn't get the chance to work in the implement project. These are the things I am doing right now in my current companies. So, what are the daily your work activities and what you do? What are the challenges you face in device management in ISU project? The tasks we have to daily challenges we face, that we have to coordinate while creating device. We have to coordinate with the team. That time we have to need coordination, because we cannot create a device without a material master. So we have to give all the details, coordinate with that team. No, but why you require the consultant? Because in mostly For the sir, sir. so do you create a material? No, sir. Material master is created by the consultant. For that, we have to coordinate with them. After that, we can create the device. Okay. So can you tell me about the device life cycle and what are the master data available in ISU? There are two master data. One is business master data, another one is technical master data. In business master data consists of business partner, contract account, and contract. Business partner contains all the customer details like customer address, name, contact information. Contract account contains all the details related to the billing related, and contract is
what type of service is customer using, for example, electric, gas, or water. In technical master data, we have connection object, uh, premise, device location, Mm-hmm. device, and these are the things in the technical master data. Mm-hmm. What are the device master data? What are the device master data? Uh, Sorry, sir, I don't know. Device master data. What are the schedule master data? Schedule master data. So no, don't know, sir. What are It's the for the for recording purpose. We record the meter reading by the help of schedule master data. and what are the regional structure? What is the user regional structure? Why do we maintain regional structure? So regional structure is maintained so that we can um, map the customer details area wise. For example, we have to implement install new devices in a city. For that, we have to create a city. Then there are multiple districts in that city. So we have to assign different districts. For that reason, we create regional structures so that Mm-hmm. we can track the meter and track the customers. Okay. What are the meter download and upload program? Uh, Sir, I don't. सर ये हुआ नहीं है ना सर. And what is the development enhancement you have worked? Have you worked on any development enhancement? Sir, I work in the enhancement of creation of uh, device location and connection object. So what the logic you gave and what type of the enhancement you did? Yeah, this is the standard functionality. What you did the enhancement in this device location or connection object? Uh, Have you ever worked on any object development? What are the reports? no, sir. Right. Have you worked on any reports development? No, sir. And how many projects you have worked in ISU? Three projects. No, what three projects? What is your three project? What is the current project? What is previous project? And what is the third project? And what was your responsibility in that project? I don't know. You know about debugging? No, sir. What are the table available in ISU project in device management?
Give me 5 tables name in ISU. Uh, One is EHUISU for connection object. One is EVBS for premise. Mm-hmm. Uh, and so these are the two tables. What are the billing master data? What are the rate type and rate category and what is its use? Have you heard about the EDM? No, sir. What are the smart meter integration? Do you have idea about AMI? Yes, sir. I know about AMI, but I didn't work on that part. Mm-hmm. So how do we configure about the AMI? Or what are the advantage of the AMI? What are the difference between normal meter and AMI meter? Sir, in normal meter, our meter reader goes and capture the reading. Mm-hmm. In AMI, the reading is automatically captured. Mm-hmm. No meter reader is required. Mm-hmm. So these are the main difference between AMI and manual meter. Mm-hmm. What are the estimation process? Don't know, sir. How the system do the estimate of the meter readings? What are the validation? How many validations are there in device management? Don't know, sir. Where we maintain the static nodes for the meter Static, readers. Yes. uh, static notes means? Sorry, I didn't get it. Where can we maintain the nodes for the meter reader? Notes Mm-hmm. in configuration side, sir. SPR configuration. Where we can maintain, where we can apply. So we can apply in connection object. Mm-hmm. There we can maintain the nodes by doing first we have to go to SPR. There we have to click on SAP utilities. Mm-hmm. There we have to go to connection object. There is the option for the maintaining the nodes. Mm-hmm. There we can maintain all the information. What are the information? There we can enter. Mm-hmm. And what are the validation class? What are the minimum portion? What are the minimum portion and what is its use? Don't know, sir. What are the weighing key? Have you heard about the weighing key? And what is its use?
No idea, sir. What is use of your portion and MRU? What is use Uh, of the parameter regards? but till now, I have not worked on that part. Mhm. How we determine the rate? What are the register relationship? What are the main and submitters? So main meter and submitter is used mostly in the, for example, there is a one industry that Mhm. there are multiple plants in that industry, for example, five, and for that industry we have one main meter Mhm. and five sub meter. These Mhm. five sub meter will calculate all the readings, and the main meter also main meter calculate all the reading Mhm. by the help of this five submitter, and this submitter also calculate their own reading. Mhm. The- this is mostly used for the industry purpose for billing, or if there is any difference between a main and submitter, that is the loss. Mhm. What are the type of the billing? What are the types of billing? What are the meter reading region? How many types of meter reading regions? And one is billing period, one is interim reading, one is for estimation. Mhm. What are the meter group? What is its use of meter group? Don't know, sir. Have you worked with any third party integration with device management? Till now, I am not, sir. What are the meter read upload and download program and how we do? Suppose I want to get meter readings from any third party system. So how we'll do the configure? No, no idea, sir. What are the POD? Point of delivery. What is its use? So POD stands for point of delivery. It is Mm-hmm. mostly used in deregulated market. Mm-hmm. Uh, it is used to track where the gas is supplied. Mm-hmm. For that purpose, we use POD.
How many PODs are there? What are the technical POD and what are the deregulated POD? Don't know, sir. What are the energy data management? What are the Don't know. real-time pricing? No, I don't know, sir. What are the time of use and spot billing? Don't know, sir. What are the dynamic period control? A dynamic period control is used for the estimated meter reading. Mhm. It will on that basis it will calculate the for there are two option dynamic period. One is previous billing period, another is previous year. Mhm. On that basis, it will calculate the estimate reading. Mhm. For example, in this cycle, the meter reader didn't capture the meter reading of that customer. Mhm. Then we have option whether we generate the estimate reading basis on the previous bill Mhm. or last year bill Mhm. meter reading. What are the meter cycle? Don't know, sir. How do we integrate this device management with plant maintenance? By functional locations, device. There are 2 points where we integrate with plant maintenance. One is device and Mhm. another one while creating the uh, device location, sir. Mhm. Device location. These are the integration point Mhm. with the plan PM. How do we integrate with material management? Uh, while creating the device location at that time, we integrate with the material management. Mhm. How do we integrate? While we create a device location, when we fill all the details, that time we enter the material master. That time system automatically generate the functional location Mhm. at the back end. That is the integration point. Okay. How we do the device modification? Don't know, sir. How we do the suppress of the priority of the meter readings? That we can do at uh, register category. Suppressed. Bluetooth disconnected. How much experience you have in ISU? So I have 4 years of experience. Mhm. In 4 years, what you did? In four, in 4 years, I did installation, device installation, removal, replacement, temporary disconnection. Mhm.
Permanent extension, creation of device, Mhm. creation of connection object. When you create the connection object, why you create the connection object? Connection object is created for a for a building or a area. For example, new connection is connection object is the starting point of the technical master data. Mhm. Without a connection object, we cannot and do the meter reading. The Mhm. first step is a connection object. Connection object can be referred to a building or an apartment Mhm. where there are multiple premises. To that time, we create connection object. Mhm. After creating the connection object, then we create a premise. Mhm. Premise refers to the customer house. Then after that, we create device location, Mhm. which means where the device is located. Mhm. After that, we create device. Mhm. Then we do the full installation. What are the meter block region? Where do we maintain and where we can maintain meter block region? Meter block region we can maintain at full installation time in installation site. Mhm. That we can map so that, for example, there is a maintenance of the meter or meter is fault. That time we can add a lock on that Mhm. installation. Mhm. So how do we maintain the staff? In ES31, we enter the installation. There is a MR region block. Mhm. MR block. There we can assign the lock region. Okay. How many teams are there? Sorry. How many teams are there in your project? Don't know, sir. What are the contract account and what is its use? What are So the business contract partner? business partner contains the customer information like customer address, uh, 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 email ID. All the personal details are captured in the business partner. In Mhm. contract account, it contains all the data related to billing. Mhm. Contract account, Mhm. whether what are the LPC charges to be added, what is the Tell me what are the dunning procedure? due, sir. What are the dunning procedure? So dunning procedure is used when customer is not paying their invoice. That Mhm. time dunning is used. Mhm. Mm, What are the budget billing? don't know, sir. What are the average monthly billing plan? Don't know, sir. What are the table for the meter reading?
Give the table names of the installation and contract. Installation table is EANL Hmm. and contract table, if I correct, FKK. Hmm. FKK VKP. In which table we can give the invoice detail and billing details. Don't know, sir. What is the table for the device category and register group? What is the deregulated and regulated? Sir, regulated market is that market in which there is monopoly of that company. In that area, only one company serves. For example, in CGD, for example, Hmm. Chandigarh. For example, one gas company is serving at Chandigarh. That is referred to regulated market. Hmm. Deregulated market is there. There are more than one company provide the services to the customer. Hmm. That is called deregulated market. Hmm. So you configure this in the CPISU. How you meet this requirement? Have you any idea about this? No, sir. What the difference between technical POD and deregulated POD? No idea, sir. What is the periodic consumption? What is its use? Periodic consumption is used for used for how much consumption the customer will do. For example, we assign a number. If that consumption is exceeded, that time it goes to implausible. That's why we give periodic consumption. Hmm. Okay, thank you, Ankit. Have a nice day. Have a great day. Thank you, sir. तुमको रियलाइज हुआ कहाँ कहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन है, कहाँ कहाँ पे तुम्हारी नहीं प्रिपरेशन है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा ही. तुमको इस लेवल में जब प्रिपरेशन करोगे तब इंटरव्यू फेस कर पाओगे. Yes, sir. तो इसलिए तुमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. Yes, sir.
क्योंकि तुमको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हाँ सर। तुमको सारे मॉड्यूल का बेसिक कंसेप्ट नॉलेज रहना चाहिए, अच्छा। प्लस अपने मॉड्यूल का पूरी नॉलेज होना चाहिए। तुमको अपने मॉड्यूल का भी नॉलेज नहीं है, तुम्हें अभी टेबल का नाम नहीं याद है, क्या क्या टेबल है उसको भी नहीं तुम्हारा याद है। अभी तुम्हारा क्लास चल रहा, क्लास चल रहा तो तुम और भूल जाओ, फिर भूलते जाओगे, फिर कैसे काम चलेगा। सर। तुमने कुछ नोट बनाए नहीं है, वो तुम्हारे कुछ प्रैक्टिस चल नहीं रहा है। जब तक इसमें प्रॉपर नोट नहीं बनाओगे, डीपली स्टडी नहीं करोगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आईटी सेक्टर में जो है इंटरव्यू क्रैक करना डिफिकल्ट होता है। ओके सर। देखो, पैसा देना कहीं भी आसान होता है, क्लास करना भी आसान रहता है, लेकिन जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूस नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, सर पता नहीं था ना, तब से करूँ सर। और फिर लोग बोलते हैं कि यार हमने तैयारी किया, हमने मेहनत किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। और तुम्हारा प्रिपरेशन है 2 से 3 महीने में इंटरव्यू जो डिस्कनेक्ट कर देगा। वो लोग थैंक यू अंकित, वी लेट यू नो। तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी है कि 2 से 3 मिनट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। और तुम 3 साल 4 साल को अपने आप को जस्टिफाई करोगे, यू शुड हैव नॉलेज अप टू दैट लेवल। 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस का मतलब पर्सन इज एक्सपर्ट, मच मोर मैच्योर। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक कहाँ लगाएं, एक्सीलेटर कहाँ लगाएं, क्या है। लेकिन जब कंटिन्यूस जब गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, चलते रहते हैं, अचानक ब्रेक भी लग जाता है, अचानक गियर भी बदल जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब सिस्टमेटिक स्मूथ चलता है, होता कि नहीं। यस सर। तभी होगा जब हम कंटिन्यूस प्रयास करेंगे, कंटिन्यूस एक्सप्लोर करेंगे, जो चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा उस पर भी एक्सप्लोर करेंगे कि दुनिया में इसके अलावा भी क्या चीज़ें हैं। तब जाके जो है सक्सेस मिलता है, तो खासतौर आई.टी. इंडस्ट्री में। मैं तुम्हें क्या, मैं तो पोथी पत्र बाँचते जाऊँगा, मैं तो तुम्हारे 1 हफ्ता में पूरा सारा कोर्सेज में ख़त्म कर दूँगा। और मैं जितनी चीज़ मैं तुमसे पूछा, सारी चीज़ मैंने कम से कम, मैं मुझे लगता है मल्टीपल टाइम मैंने उसको दोहराया हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसको मैंने टच नहीं किया हूँ। सर शेड्यूल पोर्शन तो अभी तक पढ़े ही नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं हुआ। मैंने तुमको जब शुरुआत में मास्टर पढ़ाया था, उसी समय मैंने तुमको सारी चीज़ मैंने तुमको बताया था। जब मैंने मास्टर बताया था तभी तुमको शेड्यूल मास्टर ने बताया था कि पैरामीटर अधिकार होता है, उसमें पोर्शन होता है, फिर एमआरई होता है।
ठीक है सर, समझ गए सर। हाँ सर। क्या? प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा सारा पैसा बेकार जाएगा, तुम्हारा मेहनत बाकी सारा चीज। ठीक है सर, ये लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। तुम्हारे पास सिस्टम यहाँ पे सब कुछ, तुमको नहीं भी कुछ समझ में आते, यहाँ पे भी तुम देखोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने ऐसा भी तुमको बताया था, जैसे वहाँ तुम्हारा बेसिक फंक्शन है तुम्हारा। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन में तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे उधर सारा तुमको पूरा चीज यहाँ पे मिल जाएगा तुमको। Positioning the group together our context so that they can be built at the same time. To do this, you group installation together in the meter reading unit since one context belongs to one installation. Several meter readings units are allocated to portion. In exceptional cases, you can override this allocation by entering a portion directly in the contract. तो इससे भी कोई क्वेश्चन कर सकता है नहीं, कोई ओवरराइड द पोर्शन, अगर रियल टाइम है तो पोर्शन को अगर ओवरराइड करना है तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में पोर्शन को मेंटेन कर देंगे तो जो भी पोर्शन पहले मेंटेन रहेगा इंस्टॉलेशन पे तो उसको ओवरराइड कर देगा ये। तो इसी सिस्टम में सब कुछ दिया है, इसको जब पढ़ोगे सब चीज करोगे तब ना होगा। Schedule controls the following activities: meter reading, order creation, periodic billing, budget billing collection, define parameter, cash per portion, define metering unit. ये सब एक्सप्लोर किसको करना, तुमको करना है, हमारा क्या, हमारा तो जो करना था कर लिए। देखो इसमें सबसे पहले पैरामीटर का सब डिफाइन करते हैं। देखो सिस्टम में क्रिएट करना तुम्हें नॉलेज रहेगा, आधे घंटे में क्रिएट कर दोगे, लेकिन कंसेप्ट थियरी ही मुख्य चीज है ना। तो थियरी नहीं मालूम है, कंसेप्ट ही नहीं मालूम, क्यों क्रिएट करो, क्या क्रिएट करे, जरूरत क्या है। तो हम वैसे अंदाजा चीज चलाते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम कोई चीज करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों क्रिएट कर रहे हो। आइटम मशीन के बता कि एक एक चीज के तुम थारीली जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक उसे कोई मतलब नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट में क्या रहता है कि लोगों को थोड़ा सा चीजें सिखा दी बस, उसको जो सिखा दी बस वही करना है, लेकिन यहाँ पे आईटी में हर चीज नई चैलेंज जाएगा।
एक्सपीरियंस के बाद भी नए प्रोजेक्ट में नए चैलेंजेज आते हैं, उसमें ऐसा नहीं रहेगा पहले से कोई रिलेशन रहेगा, हमेशा अपना दिमाग लगा के उस पर जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। हम्म, जब हम लोग ग्रेजुएशन किए जब हम लोग लास्ट ईयर में थे तो हमारे सर बोले कि तुम लोग जो डिग्री उग्री लिए लाइफ में कहीं नहीं काम आने वाला, ये जो तुम लोग सब्जेक्ट पढ़े कहीं नहीं कोई पूछने वाला तुमसे। अपने जीवन में तुमने अपना आईक्यू क्या डेवलप किया, अपना विवेक कहाँ यूज करते हो, वही काम आने वाला है। अलग अलग जगह जाओगे अलग अलग काम रहेगा। तूने बीटेक किया उससे कोई मतलब नहीं आगे, तो वहाँ पे तूने पाइथन पढ़ा है, कंपनी को जो है दूसरा प्रोजेक्ट की जरूरत है तो वहाँ पे जो चीज़ रहेगा उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा। उसके से मतलब नहीं है कि तूने 4 साल किया तूने पाइथन पढ़ा कि जावा पढ़ा कि HTML पढ़ा GSS पढ़ा, कंपनी जो नीड है वो तो आना चाहिए तुमको। ISU में काम करे तो ISU का पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए, तब चीज़ें मिले। कल ISU के अलावा कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो उसका नॉलेज रहेगा, मैनेजमेंट पर जा रहे हो तो मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो लाइफ अभी तुम लोग जॉब कर रहे हो तो अभी तो लाइफ स्टार्ट है, जितना तुम सीखोगे उतना काम है, पूरी जीवन जितना सीखते जाओगे काम है। आज ISU सीखो, ISU के बाद फिर इसमें कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा वो सीखना पड़ेगा, कहीं अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो सीखना पड़ेगा। पता चलेगा उसमें जो है पूरा हमें डेटा एनालिटिक्स का काम करना है, उसमें पूरा डेटा एनालिटिक्स में कैसे काम करना है उस पर सीखना है। तो कंटिन्यूस लर्निंग इसमें रहता है, तब जाके जो है एक कंसल्टेंट का मतलब जो है वो ऑलराउंडर होता है। कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि ही नो एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक जो एक एंड यूजर होगा तो एंड यूजर उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपर्ट रहेगा। और कंसल्टेंट का मतलब जो है वहाँ का जो इंजीनियर उससे से भी मिलेगा तो उसके इंजीनियर से भी अच्छा नॉलेज रहेगा, तभी नहीं तो इंजीनियर उसको जो है घुमा देगा। जो इंजीनियर जो काम करता है इंजीनियर के नॉलेज रहेगा कंसल्टेंट को कि मैनेजमेंट का क्या काम करता है, मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज रहता है कंसल्टेंट को। टॉप मैनेजमेंट क्या काम करता है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या, उनका क्या रिक्वायरमेंट है उसका नॉलेज रहता है, तब जाके कंसल्टेंट बनता है। क्योंकि उसका इंटरेक्शन सबके साथ रहता है, सबको सॉल्यूशनिंग देता है। कंसल्टेंट मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन में गया तो ही इज गिविंग द सॉल्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग टू द implementer the organization, so he is also maintaining the reputation of that organization. क्योंकि कंसल्टिंग में भेंट चाल नहीं चलता है। कंसल्टिंग में एक तुमको रख लिया तो वो बोलेगा दूसरा में रखना नहीं, इसी से हमें पूरा काम करवाना है। तुमको क्लाइंट साइड में भेज देंगे, बाकी भी भेज देंगे। तो क्लाइंट ये भी नहीं तुमसे पूछेगा तुमने डीरेगुलेटेड मार्केट क्या किए, तुम्हारा ये डिवाइस कनेक्शन क्या है, रजिस्टर ग्रुप क्या है। वो तो अपनी समस्या बताए भाई देखो ये हमारी ये हम बिजनेस करते हैं, ये चैलेंजेस इसमें हमें काम करना है। उसको क्या मतलब क्या रजिस्टर ग्रुप होता है, क्या मीटर होता है, क्या डिवाइस लोकेशन होता है, क्या डीरेगुलेटेड होता है, क्या होता है, उसका तो अलग अलग टर्म यूज करेगा। वो मीटर भी नहीं कहेगा हम डिवाइस कहते हैं, वो उसको मीटर कहेगा, चाहे कुछ अलग वर्ड कहेगा। हम प्री टैबलेट कैटेगरी बोलते हो तो बोलेगा हमारे ये अलग अलग टेरिफ है। क्योंकि हम समझते हैं टेरिफ को जो हम बिल में जो है रेट में मेंटेन करते हैं तो हम जानते हैं उसको क्या है, उसको क्या मालूम, तो अपने बिजनेस की टर्मिनोलॉजी बताएगा ना हमें, जो हमें तो रेसिपी की भाषा थोड़ा हमें बताएगा वो तो बोलेगा भाई हमारे इतने कस्टमर, हम वो थोड़ा बताएगा हमारे इतने बिजनेस पार्टनर हैं।
तो इसीलिए हमें नॉलेज रखना पड़ता है कि अगर भाई हमें अगर प्रोजेक्ट करना था, हमें कहाँ होगा डिवाइस लोकेशन चाहिए, तो हम उससे से वही नहीं पूछेंगे भाई डिवाइस लोकेशन कहाँ पर है। कस्टमर से तो सर आपका मीटर कहाँ पे लगा रहता है, तो उसका कोई लिस्ट है क्या? हम्म, समझे ना? हाँ तो हमें क्वेश्चनेयर बनाते तो उसकी लैंग्वेज में हम पूछते हैं। ये नहीं पूछेंगे सर आपका रजिस्टर ग्रुप क्या 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 है, उसको क्या मालूम रजिस्टर ग्रुप क्या होता है। हम्म, रजिस्टर ग्रुप तो हमें मालूम है, अगर हम मीटर अगर वो कर रहे थे, हमें अगर डिवाइस क्रिएट करना है तो उसमें रजिस्टर ग्रुप है, उसको क्या मालूम रजिस्टर ग्रुप क्या होता है। हम्म, वो तो कभी जानता भी नहीं है क्या होता है भाई। हम्म, तो उससे हम पूछेंगे भाई मीटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसे कैसे जो मीटर के डायल है, उस मीटर का कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी क्या है क्या। हम्म, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनेयर बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे क्लाइंट से हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसके पूरा हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन को फिर बहुत बढ़िया से बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। हम्म, तो कंसल्टिंग मतलब एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी हमें करने आना चाहिए, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, पीपीटी बनाना भी आना चाहिए। हमने जो डॉक्यूमेंटेशन किया तो वर्ड में भी हमने प्रॉपर अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग है वो भी नहीं किया, वर्ड में हमने कुछ भी लिख दिया। और क्योंकि हम अपने मैनेजमेंट को भी तो चीज़ें दिखाते भाई, ये चीज़ें प्लस उनके मैनेजमेंट भी, प्लस वो सारी चीज़ें उनके टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट से लेकर डायरेक्टर तक वहाँ पे बैठ जाते हैं। भाई चलो आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट लिया, आप हमें बताओ क्या क्या गैदर किया और क्या क्या आपको इनपुट चाहिए हमारे टीम से। हम्म, तो हम पूरा वहाँ पूरी मैनेजमेंट बैठी रहेगी, चाहे जो मीटिंग में अगर आ गए तो सबसे अगर उसी में हम मीटिंग भी करते हैं, अगर उसमें भी कुछ नया इनपुट लेना तो उसी में हम क्वेश्चन भी करके उनसे पूछ लेते हैं। हम्म, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्लास करना, क्लास का नॉलेज और रियल टाइम का नॉलेज टोटल डिफरेंट हो जाता है। हाँ सर। तो तभी संभव है कि जब तुम एक्सप्लोर करोगे, थारोली नॉलेज रहेगा, हर चीज़ का नॉलेज रहेगा, तभी संभव है। हम्म, इस फील्ड में इसीलिए तो बहुत लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो क्या है, बहुत कम होता है। एक तो रिज्यूम जल्दी सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, रिज्यूम सिलेक्शन होगा तो 2 महीने 3 महीने इंटरव्यू हुआ, एक कंपनी में एक बार इंटरव्यू दे दिया तो फिर छोटी कंपनी 3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा, बड़ी कंपनी 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद दोबारा वहाँ पे इंटरव्यू दे पाओगे। एक कंपनी 2 बार इंटरव्यू दिए तो एक साल निकल जाएगा। हम्म, समझो, ये सब जो रियल टाइम चैलेंजेस जो मैं बता रहा हूँ, हाँ सर। ये TP01 हमने क्रिएट किया पैरामीटर रिकॉर्ड्स। मैं चाहता तो तुमको अभी तक सारा कोर्स कंप्लीट करके ख़त्म कर चुका रहता। हम्म, समझे तुम ना? हाँ सर। तो मैंने सोचा कि तुम टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा नॉलेज हो तुम्हें। मुझे ठीक है ख़त्म करना सर। रहे तो मैं 10 क्लास में पूरा कोर्स ही में ख़त्म कर दूंगा। हम्म, तो समझ गए सर।
देखो जब पोर्शन हम क्रिएट करते हैं, सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं दिख रहा तुमको? नो सर। अच्छा रुको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे लगा स्क्रीन शेयर कर रखा हूँ मैंने। दिख रहा है अभी? हाँ सर। तो जब भी हम पोर्शन क्रिएट करते हैं तो उसे हम पैरामीटर रिकॉर्ड से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो हमने पैरामीटर रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो सभी मैंने क्रिएट किया TP01 से। इन द बिलिंग पीरियड, एक एक फील्ड के बारे में तो नॉलेज रखना पड़ेगा। तुमको इसमें इन द बिलिंग पीरियड क्या है, यहाँ पे ओपन प्रेस करो। हर चीज़ का नॉलेज इसी में है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखो इन द बिलिंग पीरियड क्या है, डेट बाय व्हिच द पोर्शन मस्ट बी बिल्ड बाय फॉर द फर्स्ट टाइम। द पीरियड इन बिलिंग डेट इज द बेस डेट फॉर द इन द period in billing periods for the floating back billing. The date must not be earlier than the meter reading period of the scheduled reading date or allocated meter reading units dependency. Allocated date of first billing. इस पे फोन करके प्रेस करके देखो। This allocation date is used for the allocated billing statically. The date is used for in multiple contract billing to allocate billing orders and documents. It is also copied to the billing orders. Period characteristics. Budget billing cycle. Budget billing amount charge. होता क्या सर बजट बिलिंग? बजट बिलिंग साइकिल ये होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे रहते हैं, उनको कंजम्पशन से कुछ मतलब नहीं रहता। बोलते भाई मैं इतना महीने का इतना आपको, उनका क्या रहता कि बजट बिलिंग का एक इसमें बजट बिलिंग एलोकेट होता कि उसका प्रीवियस कंजम्पशन कैसा है कस्टमर का। तो कस्टमर को बोल देता है भाई ठीक है हम इतना मंथली जो है आपको पे करेंगे, चाहे कंजम्पशन हम मंथली 200 रुपये पेमेंट करेंगे। अब कंजम्पशन चाहे 150 है चाहे 250 है, मेरा उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसमें क्या रहता है, अगर बजट बिलिंग हम करते हैं तो 11th मंथ तक तो वैसे पेमेंट होते जाएगा। जो 12th मंथ का जो बिलिंग आएगा तो क्या करेगा, सारा सेटलमेंट करके बिलिंग होता है उसमें। अगर कम हुआ तो दे हैव टू पे, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो हमारे एरियर से जाता है।
देखो, budget billing amounts are charged at monthly. budget billing amounts are charged to monthly interval. तो जैसे कोई मंथली करेगा, कोई 2 मंथली करेगा, ठीक ना। ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में सब ज़्यादा यूज़ होता है कि कस्टमर बोलते हैं भाई मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, मुझे इतना $200 मंथली पे करूँगा तो $150 करूँगा, लास्ट में मैं इसको सेटल करूँगा। तो देखो ये जो बिलिंग डेट्स पड़ गई यहाँ पे, ठीक है ना, 1/1/2025 तो हर महीने को इसी टाइम को जो बिल होता जाएगा। एलोकेशन डेट फर्स्ट बिलिंग क्या था सर? मतलब फर्स्ट डेट ऑफ बिलिंग मतलब समझ। हाँ कोई बात नहीं, इसमें चेंज में जाओगे, उसको ये फोन करो, यहाँ ये फोन करो, वो इसमें हेल्प पे जाओगे, allocate data billing. This allocation date is used to allocate billing statically. The date is used in multiple contract billing to allocate billing orders and documents. It is also copied to the billing orders. तो स्टेटिकल पर्पस के लिए जो है एलोकेशन डेट जो है उसमें यूज करते हैं लोग। अच्छा। और यही डेट से जो बिलिंग ऑर्डर की डेट होता है, डॉक्यूमेंट्स में ये सारे डेट ही कॉपी होके जाता है। जहाँ पे इसको एक्सप्लोर करोगे तो तुमको हर चीज का आंसर मिलता जाएगा। यहाँ पर पोर्शन क्रिएट कर दिए TP01। फिर देखो यहाँ टी कोड से भी हो जाता है। तो पैरामीटर रिकॉर्ड्स क्रिएट करोगे E=2 से, फिर शेड्यूल मास्टर डेटा हम जाएंगे तो पोर्शन क्रिएट करेंगे हम E41B से, और फिर MRU क्रिएट करेंगे E41H से। फिर TP01 से क्या क्रिएट किया था? हाँ TP01 तो मैंने नाम दिया था ना पोर्शन का। अच्छा उसका टी कोड। अच्छा मीटर MRU है ना, टेस्ट MRU मैंने के टेस्ट MRU मैंने कर दिया, ठीक ना। टेस्ट MRU मैंने टेस्ट MRU क्रिएट किया मैंने, ठीक ना। अब जब हम MRU क्रिएट करते हैं तो फिर यहाँ पे पोर्शन यहाँ पे इंटर करते हैं, तो इसलिए MRU कैन बी क्रिएटेड विदाउट द पोर्शन एंड पोर्शन कैन बी क्रिएटेड विदाउट द पैरामीटर रिकॉर्ड्स। सो दिस इज द सीक्वेंस। सर पैरामीटर रिकॉर्ड क्या होता है? पैरामीटर रिकॉर्ड्स में हम बजट बिलिंग डेट्स मेंटेन करते हैं। अच्छा, आपने पैरामीटर रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है सर? हाँ किया था, अभी दिखा दूंगा। देखा है। हाँ हमने पोर्शन जो क्रिएट की थी TP01 ही दिया था ना मैंने। TP01। तो देखो अभी क्या है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे मीटर रीडिंग यहाँ पे डेट्स नहीं है, तो हमेशा जो मीटर रीडिंग डेट्स ऑलवेज कॉपी फ्रॉम द पोर्शन,
क्योंकि हम मीटर रीडिंग डेट से आप कहीं डालते नहीं हैं, एमआरयू क्रिएट करते हो। जो पोर्शन जो मीटर रीडिंग डेट से रहा है वही मीटर रीडिंग बिलिंग डेट जो रहता है, पोर्शन हम बिलिंग डेट से मेंटेन करते हैं और एमआरयू जो है हम मीटर रीडिंग डेट से मेंटेन करते हैं। लेकिन एमआरयू हम कोई डेट से नहीं इंटर करते हैं, जो बिलिंग डेट से रहता है वही कॉपीड होता है एमआरयू मीटर रीडिंग डेट से। देखो आ गया ना, सारा कॉपी हो गया ना? हाँ सर। सारा यहाँ पे आ गया ना? टोटल मीटर रीडिंग कैटेगरी में क्योंकि जो पीरियडिक बिलिंग होता है हमेशा, तो ये मीटर रीडिंग बाई यूटिलिटी कंपनी है, ठीक है ना? हाँ सर। अब इसमें ये सब मीटर रीडिंग बाई इंड ऑफ मीटर रीडिंग पीरियड क्या होता है, तो इसमें जब F1 प्रेस करोगे तो सब तुम करो, क्योंकि अब इंटरवल बिटवीन मीटर रीडिंग एंड इंड ऑफ मीटर रीडिंग पीरियड स्पेशल शेड्यूलिंग रीडिंग डेट्स इन द शेड्यूल रिकॉर्ड्स। Order creation to meter readings. Interval between order creation and scheduled reading dates. Use determine the date for the meter reading order creation. The days are working days. If you do not use the factory calendar, the days are calendar days. जैसे ऑर्डर क्रिएशन टू मीटर है, जैसे अगर हम 4 डेज यहाँ पे डाल दिया तो क्या होगा, जैसे मान लो एक को हमारा मीटर रीडिंग चाहिए तो 4 दिन पहले मीटर रीडिंग ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर वहाँ पर यूज फैक्ट्री कैलेंडर जब यहाँ पे डाल देंगे तो क्या करेगा सिस्टम, जो वर्किंग डेज रहेगा उसी समय मीटर रीडिंग ऑर्डर क्रिएट होगा। मान लो कोई हॉलीडे है, ये सब तो फैक्ट्री कैलेंडर में मेंटेन होता है, तो फिर हॉलीडे के दिन वो मीटर रीडिंग ऑर्डर नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि हॉलीडे तो मीटर रीडर भी छुट्टी पर रहेगा, तो क्यों मीटर रीडिंग क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग जब थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, एंट्री इंटरवल क्या होता है, इंटरपोलेशन में एडिशनल मीटर रीडिंग रिजल्ट फ्रॉम existing meter reading is dependent reason for the meter reading. You enter the appropriate definition customize entry interval. Period before or after meter reading by the company, utility company, in which a second meter reading result is derived. This means that a further reading by the utility company is not necessary. हमारा क्या होगा, TMR01, ये मीटर रीडिंग क्रिएट होगा TMR01 MRU। तो हमारा तुम्हारा तीनों मिला कर हमारा शेड्यूल मास्टर डेटा कहलाता है, ठीक है ना? TP0 सब पैरामीटर वाला दिख रहा है। हाँ कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे TP01 से क्रिएट किया ना मैंने, यहाँ पे ऐसे किए, कुछ नहीं डाले, टेस्ट पैरामीटर रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिया। जब बजट बिलिंग डेट से सब जो मेंटेन करना रहता है, तो बिना पैरामीटर रिकॉर्ड के हम लोग पोर्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पैरामीटर रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, फिर पोर्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद एमआरयू क्रिएट करते हैं। और ये पैरामीटर का खाली पर्पस है बजट बिलिंग के लिए। हाँ, बजट बिलिंग डेट से इसमें मेंटेन होता है।
बजट बिलिंग अच्छा। साइकिल मेंटेन होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम तब यहाँ पे हमें जब नया क्रिएट करेंगे TP02 में क्रिएट करता हूँ। ऐसे उसमें जो बजट बिलिंग डेट सिस्टम मेंटेन करना होता है। यहाँ पे प्लस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है इसमें ऐड करने का। ठीक है ना, तो पोर्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट पैरामीटर क्लासन, MRU कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट पोर्शन। ये हायरार्की होता है। तो इसको मेंटेन कहाँ पे करते हैं? इसमें होता है तुम्हारा MRU डायरेक्टली लिंक्ड विथ इंस्टॉलेशन, डायरेक्टली लिंक्ड विथ MRU। डायरेक्टली linked with MRU and indirectly with पोर्शन। आया समझ में? कैसे बताओ? सर इंस्टॉलेशन क्रिएट करने के टाइम वहाँ पर देखता है ना ऑप्शन MRU ऐड करने, MRU कौन से MRU और पोर्शन है। कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट MRU। हाँ, तो इसलिए इंस्टॉलेशन जब मेंटेन करते हैं तो आप MRU डालते हैं। तो MRU क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन हो गया इंस्टॉलेशन से। हाँ, उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो एक MRU है, ठीक ना, और इसको रियल टाइम में अब समझो यूज कैसे करना है। तब क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एरिया है, एक एरिया जैसे मान लो तुम्हारा नोएडा है, तो नोएडा को हमने एक पोर्शन बनाया। अब नोएडा में क्या है कि फिर उसमें पूरा नोएडा में
1 मीटर रीडर तो नहीं जा पाएगा मीटर रीडिंग लाने के लिए, वो संभव नहीं है। और मोस्टली जो लेबर लॉ के अनुसार 1 मीटर रीडर को एक दिन में हम 100 मीटर देते हैं रीड करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो संभव नहीं उससे ज़्यादा रीड करने का उसको। तो मान लो नोएडा का हमने एक पोर्शन बनाया, उसमें क्या अलग अलग फिर MRU बनाएंगे। उस MRU में क्या करेंगे, जैसे एक MRU बनाएंगे उसमें मान लो 100 मीटर अगर हमें क्या करना है ग्रुप करना है, तो 100 मीटर के जो 100 इंस्टॉलेशन बनाएंगे तो उसमें हम सेम MRU उसमें डाल देंगे। ऐसा समझ में? हाँ सर। तो जब सेम MRU उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, MRU को ग्रुप कर देगा सारे इंस्टॉलेशन को। जब उस MRU से जब मीटर रीडिंग आर्डर क्रिएट होगा तो उतने इंस्टॉलेशन का जो है मीटर रीडिंग आर्डर जो है एक हम मीटर रीडर को देंगे, तो उसमें वही इंस्टॉलेशन रहेगा जो उस मीटर रीडर के लिए रहेगा। तुमको समझ आ कैसे, मतलब मीटर रीडिंग इंस्टॉलेशन कैसे ग्रुप करता है। तो जिस इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं वैसे MRU डाल देंगे तो उतने इंस्टॉलेशन ग्रुप हो जाएगा एक साथ में मीटर रीडर। तो उतने को जब MRU जब मीटर रीडिंग आर्डर क्रिएट करेंगे तो अपने आप जो उतना MRU क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर शेड्यूल रिकॉर्ड्स जब ये सब मेंटेन कर देते हैं तो यहाँ पे E43 से हम क्रिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, या तो पोर्शन क्रिएट करेंगे फिर MRU क्रिएट करेंगे। शेड्यूल रिकॉर्ड्स क्रिएट होने के बाद जो है, अब चूँकि हमने कहीं यूज नहीं किए हैं, 24 शेड्यूल रिकॉर्ड में क्रिएट हो गया, ठीक है ना। आप फिर MRU क्रिएट करेंगे तो MRU भी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा। 2 साल के साथ क्रिएट हो जाए। 24 शेड्यूल रिकॉर्ड्स हैज बीन क्रिएटेड। पहले शेड्यूल रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इस पोर्शन से भी हम क्रिएट कर लेते हैं, बल्क में क्रिएट करना रहता तो। उसके बाद एक बार क्रिएट करने के बाद फिर हम शेड्यूल रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के बाद तब जाके हम उसका मीटर रीडिंग आर्डर क्रिएट करते हैं, तब सिस्टम मीटर रीडिंग आर्डर क्रिएट करने देता है। तो आज शेड्यूल रिकॉर्ड्स आए समझ में तुमको? शेड्यूल रिकॉर्ड्स में बाकी तुम इसमें नोट बना लेना शेड्यूल रिकॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। हाँ सर। तो आज यहाँ पे क्लोज किया जाए। हाँ सर। ठीक है सर, ये वाला वीडियो आप अपलोड करोगे क्या? कर दूंगा। सर, ये वाला वीडियो में वो मैंने कंपनी का नाम बोल दिया, वो थोड़ा दिक्कत होगा मतलब बोलने। तुम कंपनी का नाम बोल दिए थे, वीडियो अनलिस्ट करके मैं करता हूँ ना तो पब्लिक नहीं रहता। अच्छा, ये पब्लिक नहीं रहता क्या वीडियो? नहीं, अनलिस्ट करके मैं करता हूँ ना। उसका मतलब सर क्या होता है, आप बताना, मैं समझ। अनलिस्ट रहता तो पब्लिक नहीं होगा, जब तुमको शेयर करो सिर्फ तुमको ही दिखेगा। अच्छा। दूसरे किसी को दिखेगा नहीं। अच्छा सर, मैं आपको ये बताऊँ ना सर, अब क्या मतलब आज तो इंटरव्यू मेरे को पता चल गया लेवल, तो उसी का तुमको तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गए सर, आज पता चल गया। ठीक है, ओके सर। सर पिछले क्लास का भी सर वीडियो, पिछले क्लास का तो मैंने ख्याल से मैंने अपलोड तो किया था, शायद तुमको शेयर करना भूल गया उसको।